प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम के नए मेयर वीवी राजेश को लिखा खत। तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट की सत्ता जहाने पर प्रधानमंत्री मोदी बोले युग बदलने वाली जीत। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा एलडीएफ और यूडीएफ का फिक्स मैच खत्म होने की राह पर। प्रधानमंत्री मोदी के खत पर तिरुवनंतपुरम के मेयर वीवी राजेश का बड़ा बयान। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और इसी के साथ ही केरल के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है और इसी के साथ ही दशकों पुरानी एलडीएफ की जो सत्ता है वो पूरी तरीके से ढह गई है। अब इस सत्ता ढहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम शहर के मेयर वीवी राजेश को एक खत भेजकर उन्हें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केरल की राजधानी में पहली बार सत्ता में आने को लेकर के बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये एक युग बदलने वाली जीत है। प्रधानमंत्री मोदी के पत्र के जवाब में वीवी राजेश ने सोशल मीडिया के जरिए इसे एक बड़ा तोहफा बताते हुए कहा कि ये सम्मान माननीय प्रधानमंत्री की ओर से केरल को दिया गया नए साल का तोहफा है। इसी के साथ ही वीवी राजेश ने क्या कुछ इस खत को लेकर के और विकसित तिरुवनंतपुरम को लेकर के मीडिया से कहा, सुनिए उनका ये बयान। Happy to inform you that Honorable Prime Minister Narendra Modi wrote a letter to Kerala, wrote a letter to Trivandrum and congratulating the total workers of Kerala for the last 40-45 years. Their sacrificed life, they sacrificed their life for an ideology. That is the result reflected in the Trivandrum Corporation election. Yeah. 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 For the last so many years, they are alliance in Delhi and they are totally in conflict in Kerala. The baseless their route, it has been identified by the people of Kerala, and that resulted in this election. It has been also mentioned by Modi in that letter. Yeah, anyway, our honorable party state president Sri Rajiv Chandrasekhar is coordinating that things. Today also we conducted a councillors meeting and we have given direction to the councillors to get the pulse from the ground level, what are the developmental activities they need in their wards, and we are going to submit a paper which is getting the information from the field and the experts, and through party state committee we will present it to PMO. I think that after going to it, the PMO will add their concepts and he announces the programs when he arrives in Tirunelveli. Priorities I have already mentioned so many times during our election campaign also. First priority is the proper waste management system should be implemented in Trivandrum. For example, Goa, there is a Pakka system going on there. I think that HBCL is also cooperating that system. The same technology is being going on in Madhya Pradesh also, Indore also. The second one is stray dogs. Under the adopting the or implementing the verdict given by Honorable Supreme Court, we should keep all the dogs in the shelters. We already mentioned during our election campaign also. The third one is flood issue and the fourth one is drinking water issue. We are sorting all the issues, and I think that we can time bound we can solve all these problems. Yeah. I feel that we can form the government in Kerala because this same situation will be reflected in the assembly election also. I can't count the number or announce the number now itself. Anyway, our party state team will give all details regarding assembly election. Pardon? We are expecting the CM's vehicle will come after the 26 election, which CM's vehicle will come to BJP office. Okay, thank you. दरअसल आपको बता दें कि 30 दिसंबर को वीवी राजेश को भेजे अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर जीएस आशानाथ के शपथ लेने के बाद तिरुवनंतपुरम में एक नया इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें तिरुवनंतपुरम आने की अच्छी यादें हैं। ये शहर श्री पद्म स्वामी से धन्य है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक केरल की राजधानी ने नेताओं, समाज सुधारकों, संगीतकारों, कलाकारों, कवियों, सांस्कृतिक दिग्गजों
पूर्वजों साधु संतों को पाला पोसा है। उन्होंने कहा कि जब ऐसा शहर हमारी पार्टी को अपना आशीर्वाद देता है तो ये बहुत विनम्र करने वाला होता है। तिरुवनंतपुरम को विकसित बनाने का हमारा विजन शहर भर के लोगों के साथ गूंजा है। समाज के हर वर्ग के लोगों ने इसे पसंद भी किया है। केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खत में कहा कि लोगों ने केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के काम और अलग अलग राज्यों में शहरी विकास के लिए किए गए प्रयासों को देखा है, जिसने उन्हें पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं इस शहर के लोगों को उनके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी की जीत पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत से बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम के लोगों के आशीर्वाद से जो हुआ है वो युग बदलने वाला है। ये सुनहरे अक्षरों में लिखा एक मील का पत्थर है। साथ ही अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों एलडीएफ और यूडीएफ की भी जमकर आलोचना की और कुशासन, भ्रष्टाचार और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा फैलाने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें, दरअसल केरल विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी संजीवनी का काम कर सकती है। वीवी राजेश के तौर पर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी ने पहली बार परचम लहराया है। यहाँ 45 सालों से लेफ्ट पार्टियों के शासन का अंत हुआ है और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का यह खत भी काफी ज्यादा मायने रखता है। बताया जा रहा है कि जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम भी जा सकते हैं। हालांकि राजेश को बीजेपी के 50 पार्षदों के साथ एक निर्दलीय का समर्थन मिला। टोटल 51 वोट जो है वो वीवी राजेश को मिले। 101 सीटों वाले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मेयर के चुनाव में एलडीएफ उम्मीदवार आरपी शिवाजी को 29 और यूडीएफ प्रत्याशी को 17 ही वोट हासिल हुए। जीत के बाद वीवी राजेश ने कहा कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सभी 101 वार्ड में विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे, तिरुवनंतपुरम को देश के एक विकसित शहर में बदलेंगे। सुनिए क्या कुछ अपनी जीत के बाद वीवी राजेश ने कहा था। This is a historic movement. I think that this movement will change the political situation in Kerala. Yeah. To solve the basic problems of Trivandrum city, we have already mentioned. Okay. I think that within 30-35 days, during the election campaigning, we told that after the counting, within 45 days, Modi will be here. I think that now it is only 30-35 days. We are expecting soon. Definitely, why not? I think that the change of the political change of Trivandrum will change the history of Kerala politics. The political change of Trivandrum will change the entire political situation in Kerala. आपको बता दें, केरल नगर निगम चुनाव रिजल्ट आने के बाद मेयर पद के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा का नाम भी चर्चा में आया था। हालांकि बाद में वीवी राजेश के नाम पर मुहर लगी। तिरुवनंतपुरम में जन्मी और पली बढ़ी श्रीलेखा जनवरी 1987 में केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। 3 दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने सीबीआई, केरल क्राइम ब्रांच, विजिलेंस, फायरफोर्स, मोटर वाहन विभाग और जेल विभाग सहित प्रमुख एजेंसियों में सेवा दी। 2017 में उन्हें पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के पद पर प्रमोट किया गया, जिसके बाद वो केरल में एक रैंक हासिल करने वाली पहली महिला बनी। सीबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें अपनी निडर छापेमारी और भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए रेड श्रीलेखा के नाम से बुलाया जाता था। 33 साल की सर्विस के बाद दिसंबर 2020 में रिटायर हो गई और 4 साल के बाद 2024 में वो बीजेपी में शामिल होती हैं और उसके बाद यहां से नगर निगम का चुनाव लड़ती है। खैर, श्रीलेखा को जीत तो हासिल हुई, लेकिन इसी के साथ ही तिरुवनंतपुरम में जिस तरीके से बीजेपी ने यह शानदार जीत हासिल की है, इसकी जमकर चर्चा हो रही है। खुद जो कांग्रेस के सांसद है शशि थरूर, जो कि तिरुवनंतपुरम उनका गढ़ है, शशि थरूर ने भी बकायदा बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी और इसी के साथ ही डिप्टी मेयर आशा नाथ के नाम की भी जोरदार तरीके से चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्हें एक युवा नेता के तौर पर देखा जा रहा है और जिस तरीके से उन्हें डिप्टी मेयर का पद सौंपा गया है, उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें भी लगाई जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से वीवी राजेश का कहना है कि वो सभी 101 वार्ड को लेकर के साथ
चलेंगे, यानी कि सबका साथ सबका विकास और तिरुवनंतपुरम को और बेहतर बनाने की कवायद में बीजेपी कोशिश करेगी। कहीं ना कहीं ये जो तिरुवनंतपुरम में जीत हासिल हुई है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और ऐसे में इसे केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के शानदार रणनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।